My dear students, once again welcome to all of you. Student, after completing first lesson of geometry, what is the first lesson of geometry? Basic concepts in geometry. Student, we have to completed this lesson. Student, now in this lesson we will start second lesson of geometry. Student, second lesson of geometry is parallel lines. Do you know what are the parallel lines? Can you define what are the parallel lines? Student, parallel lines are those lines lie on the same plane but do not intersect to each other are called parallel lines. Okay student, first we will study about the definition of parallel lines. Definition of parallel lines. How to define parallel lines? Non-intersecting coplanar lines are called parallel lines. Non-intersecting coplanar lines are called parallel lines or called parallel lines. Okay student, non-intersecting means those lines do not intersect to each other. Student, here one more important word is there, coplanar. Coplanar lines. Student, do you know what are the coplanar lines? Student, lines lie on the same plane. Lines lie on the same planes are called coplanar lines. coplanar line का मतलब समझते हैं क्या? एक ही प्लेन पर, एक ही प्लेन, जैसे मैं एक ग्रीन बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, एक ग्रीन बोर्ड है, दिस इज द प्लेन फॉर मी, ये मेरे लिए प्लेन हो गया. तो इस प्लेन पर हम जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे, दोज लाइन्स आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइन्स. आप अपने बुक पे जितना लाइन ड्रॉ करोगे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वन लाइन इज दिस, सेकेंड लाइन इज दिस, थर्ड लाइन इज दिस, फोर्थ लाइन इज दिस, सारी लाइन कहाँ पर है? एक ही प्लेन पर है, एक ग्रीन बोर्ड पर ही सारी लाइन है. सो स्टूडेंट, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइन्स. ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? व्हाट आर दी कोप्लेनर लाइन्स? लाइन्स लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन पर लाई करती है, मतलब एक ही प्लेन पर हो, दोज लाइन्स आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइन्स. स्टूडेंट, नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइन्स, मतलब ऐसी कोप्लेनर लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. Student, let this is line L and this line is M. As you see, these two lines are non-intersecting and coplanar lines. So student, these two lines are called parallel lines. Clear ना? Parallel lines समझ में आ गया? Okay student. Now next point is transversal. Student, this is first point, parallel lines, and now our second point is transversal line. Second point is transversal line. What do you mean by transversal line? What do you mean by a transversal line? If a line intersect two or more lines in distinct points, then that line is called transversal line. Student, suppose that we have 1, 2 and let one more lines. There are 3 lines. If any lines intersect these lines, if any line intersect these lines in distinct point means in different points, then that line is called transversal line. Let we have a line T. This line T intersect this point at this point. Let this point is A and let this point is B and let this point is C. And name of this line, suppose that L, and this is line M and this is line N. Student, there are 3 lines and one line
and one line intersect these lines in different point. So student, this line T is called a transversal line. Clear na? Transversal line is clear na? A line which intersect two or more lines in different points, in distinct points, then that line means line T is called ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल, एम एंड एन. ओके स्टूडेंट, अच्छा डेफिनेशन में मैं क्या बोला, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, अगर एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. अगर ऐसी लाइन होती है, सपोज दैट वन लाइन इज यल एंड सेकेंड लाइन इज एम, देन दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. इसमें ट्रांसवर्सल नहीं है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन. दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. नाउ दिस ट्रांसवर्सल इज क्लियर. इफ एनी लाइन intersect two or more lines in distinct points, then that line is called transversal line. Okay student, transversal is clear. Now write its definition. If a line intersect two or more lines, if a line intersect two or more lines in distinct points, then that line is called transversal line. Then that line is called transversal line. Okay student, now draw its diagram. Let this is line L, line M, and one more line we have to consider, line N. And if a line T, suppose that this is line T, this line T intersect line L, let at point A, and this line T intersect line M at point B, and T intersect line N, let at point C. So student, this line T is called transversal line of line L, M and N. Now clear na? Transversal is clear na? Okay student, first one we have studied parallel lines. What are the parallel lines? Non-intersecting coplanar lines are called parallel lines. Okay student, इसका डायग्राम हमने ऐसे बनाया. This is line L and this is line M. Now you see in this diagram, this line L is parallel to line M. And notation of parallel lines. How to denote two parallel lines? Student, line L is parallel to line M. Okay student, this is the notation, symbol of parallel lines. Okay student, now note down this definition. And okay my dear student, now next point, third point is intercept. Student, what do you mean by intercept? Student, see this diagram. There are three lines, line L, line M and line N, and this line T is transversal of these lines. Okay student, now how to define intercept? Intercept क्या होता है? Intercept is a part of transversal. Student, this is transversal. इसमें हम अगर ये सेगमेंट ले लें, कौन सा सेगमेंट? सेगमेंट ए बी. स्टूडेंट, दिस सेगमेंट ए बी इज पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन टी. देख रहे हैं ना, ये जो सेगमेंट ए बी है ये किसका पार्ट है? ट्रांसवर्सल का पार्ट है और दो लाइन के बीच का पार्ट है. सो स्टूडेंट, दिस सेगमेंट ए बी इज नोन एज इंटरसेप्ट. बात समझ में आई क्या? एंड आल्सो बी सी इज another intercept. Now clear ना? Intercept is clear ना? Intercept क्या होता है? Intercept is a segment
part of the transversal and between two lines. Clear? Now write its definition. Intercept is a segment which is a part of transversal. इंटरसेप्ट किसका पार्ट होता है? ट्रांसवर्सल का. अ सेगमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू लाइन्स. बिटवीन टू लाइन्स. ओके स्टूडेंट, इंटरसेप्ट इज क्लियर ना? नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम and can you decide which part is intercept? Student, segment AB and segment BC are intercept. Okay, now write down, for example, segment AB. This segment AB, according to this diagram, we can write segment AB and this segment BC are intercepts. ओके स्टूडेंट, इंटरसेप्ट्स आर क्लियर ना? इंटरसेप्ट्स क्या होता है? इंटरसेप्ट इज अ सेगमेंट विच इज पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल का ही पार्ट होता है, विच इज पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू लाइन्स. दो लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल का जो पार्ट होता है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. ओके स्टूडेंट, इंटरसेप्ट इज क्लियर ना? नाउ नोट डाउन दिस डेफिनेशन विद दिस डायग्राम. ओके स्टूडेंट, डेफिनेशन लिखो, डायग्राम लिखो, उसका एग्जाम्पल लिखो. ओके स्टूडेंट, एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल. हाउ मेनी एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एनी टू लाइन्स? ओके स्टूडेंट, when a transversal intersect any two lines, then how many angles are formed? Student, total 8 angles are formed. Suppose that we have two lines. Let this is line L and second line is, suppose that this is line M, and we consider a transversal line T, and this line transversal. Okay student, this line T is a transversal of line L and M. तो बात समझ में आ रही क्या? यहां पर हमने क्या कंसीडर किया? दो लाइन कैसी भी हो सकती हैं. यहां हमने पैरेलल नहीं बोला है, पैरेलल का भी बाद में आ रहा है. बात समझ में आ रही क्या स्टूडेंट? नाउ वी हैव टू कंसीडर two lines and this is transversal of these two lines. When a transversal intersect two lines, then how many angles are formed? How many angles are formed? मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइन को कट करती है तो टोटल कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स. नाउ सी इन दिस डायग्राम, स्टूडेंट, सी इन दिस डायग्राम, one angle is this. Let this is one angle and this angle, name of this angle is A, and let second angle, let this is angle B, and let this angle is C, and fourth angle is denoted by D. A, B, C, D, and this one is angle E, and this one is angle EF, and this one is angle G, and this one is angle H. Okay student, now you see in this diagram, when a transversal intersect two lines, then total 8 angles are formed. कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल कुल मिला के बनते हैं. तो देखो एंगल कहां पे एंगल बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay student, there are total 8 angles are formed when a transversal intersect two lines. Okay student, out of these 8 angles, 4 angles are interior angles and 4 angles are exterior angle. Okay, clear? Now write down, if a transversal intersect two lines, then total 8 angles
8 angles are formed. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना. जब एक ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइन को कट करता है तो टोटल कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल बनते हैं. स्टूडेंट, आउट ऑफ दीज 8 एंगल्स 4 angles are exterior angles and 4 angles are interior angle. एक्सटीरियर इंटीरियर समझ रहे हो क्या? ये दोनों लाइन के बीच में जो आ रहा है एंगल. स्टूडेंट, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ. दीज 4 angles are interior angles and exterior angles are A, B, H and G. Okay student, exterior angles and interior angles are clear na? Now write down exterior angles. How many exterior angles are there? 4 exterior angles are there. exterior मतलब बाहर, ये दोनों लाइन के बाहर जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी, एंगल एच. दीज 4 angles are exterior angle. कौन कौन सा एक्सटीरियर एंगल है जरा बताओ? एंगल ए, एंगल बी, angle G and angle H. These 4 angles are exterior angles. And now interior angles. How many interior angles? 4 interior angles. Which angles are interior angles? Angle C, angle D, angle E, angle F. These 4 angles are interior angles. Angle C, angle D, angle E, angle F. Okay student, interior and exterior are clear now. Now after this, corresponding angles. Okay student, corresponding angles. Student, corresponding angles are always in a pair. corresponding angle हमेशा पेयर में होता है. पेयर मतलब कोई भी दो एंगल, हम लोग दो एंगल रहेगा, पेयर में रहेगा तो उसको हम लोग corresponding एंगल बोल सकते हैं. अब कौन से पोजीशन पे होगा corresponding एंगल? corresponding angles are always in a pair. कोई सिंगल एंगल को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते. ओके स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर एट द सेम पोजीशन. जो एंगल सेम पोजीशन पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, नाउ सी इन दिस डायग्राम. स्टूडेंट, सी इन दिस डायग्राम. एंगल ए, दिस इज एंगल ए एंड सेम पोजीशन एंगल ई. एंगल ए और ई ये देख रहे हैं ना, सेम पोजीशन पर है. इधर देखो ये पोजीशन पर है, इधर ऐसा पोजीशन बना रहा है. देयरफॉर दिस पेयर, व्हेन वी कंसीडर एंगल ए एंड एंगल ई, दिस पेयर इज नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल. तो कौन सा पेयर? एंगल ए, एंगल ई. ओके स्टूडेंट, एंगल ए, इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इज एंगल ई. एंड नेक्स्ट इज एंगल डी. स्टूडेंट, इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इज एंगल एच. मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है. एंगल डी, इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इज एच. देख रहे हैं ना, डी का पोजीशन देख रहे हैं क्या? ये देखो, ये लाइन और इसके बीच में, तो ये लाइन और इस लाइन के बीच में, तो एंगल डी एंड एंगल एच, दिस पेयर इज आल्सो अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड पेयर इज एंगल डी एंड एंगल एच. ओके स्टूडेंट, नाउ एंगल बी, its corresponding angle is F. Third pair of corresponding angle is angle B, angle F. And fourth pair of corresponding angle is angle C and angle H. Angle C and angle G. Okay student, corresponding angles. How many pairs of corresponding angles? Student, 1, 2, 3, 4. There are 4 pairs of corresponding angles when a transversal intersect any two lines. Okay, clear now? Now after this, alternate
angles. Okay student, alternate angles are two types of alternate angles are there. One is alternate interior angles and alternate exterior angles. Alternate समझ रहे हैं क्या? Angle C, angle E, angle C and angle E. These are alternate interior angles. Alternate interior angles. And angle D and F. Alternate interior angles. Student, alternate angles are also in a pair. Alternate angles are also in a pair. Corresponding angles in a pair, and similarly alternate angles are also always in a pair. कोई सिंगल एंगल को हम लोग अल्टरनेट एंगल नहीं बोल सकते, हमेशा पेयर में रहेगा. ऐसा पेयर जो अल्टरनेट एंगल बनाता है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है. एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल ई अल्टरनेट एंगल है, बट सी एंड ई आर इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल सी एंड ई a pair of alternate interior angle. Similarly angle D and F, D and F are interior in alternate interior angles. And you see in this diagram angle A, angle G, एक ये साइड में दूसरा ये साइड में होना चाहिए, अपोजिट साइड में, इन अल्टरनेट साइड्स एंगल A and angle G. Student, this is alternate exterior angles. Angle B and angle H, this is also alternate exterior angles. Okay student, now next point is alternate interior angles. Alternate interior angles. चलो पेयर बताओ इसका. फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल ई. एंड सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल सी एंड ई कंप्लीटेड. एंगल डी एंड एंगल एफ, एंगल डी एंड एंगल एफ. ओके स्टूडेंट, देयर आर टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ alternate exterior angles. Next point is alternate exterior angles. Alternate exterior angles. Okay student, alternate exterior, alternate होना चाहिए, exterior होना चाहिए, तो एंगल A and एंगल G. This is one pair of alternate exterior angles. कौन कौन सा एंगल? एंगल ए एंड एंगल जी, एंगल ए एंड एंगल जी. एंड नाउ सेकेंड पेयर इज एंगल बी एंड एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच. ओके स्टूडेंट, नाउ क्लियर ना? एवरीथिंग इज क्लियर ना? एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल. once again I repeat it. Okay student, angles formed by the transversal. How many angles formed by a transversal when it cut two lines? Any two lines, not parallel lines, any two types of lines. तो हमने अभी parallel lines इधर कंसीडर नहीं किया. अभी इसके बाद आ रहा है parallel line में थोड़ा सा प्रॉपर्टी है. ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम कैसे पहचानेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंड व्हाट आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ओके स्टूडेंट, तो हाउ मेनी एंगल्स आर there? Total 8 angles are there. Out of these 8 angles, 4 angles are exterior angles and 4 angles are interior angles, and these are the pair of corresponding angles, and these two pairs of alternate interior angles, and these two pairs of alternate exterior angles. Okay student, this one understood ना? Okay, now note down this. Okay student, अभी हमको समझ में आ गया कि corresponding angle कैसे होता है. करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इन अ पेयर, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इन अ पेयर, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ये सारे एंगल का पोजीशन क्या होता है,
कौन कौन सा एंगल हम कंसीडर करेंगे तो उसको करिस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, और कौन सा एंगल हम लोग कौन सा पेयर कंसीडर करेंगे तो उसको अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। ये सब हमको समझ में आ गया। बात समझ में आ रही क्या स्टूडेंट? नाउ वी विल स्टडी व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पैरेलल नहीं बोला, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। तो उसमें हम क्या सीख रहे थे? हम ये सीख रहे थे करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर इंटीरियर, इस सब के बारे में हम सीख रहे थे। ओके ना? अभी हम लोग क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टी व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, let this line L and other line M, these two lines are parallel lines। अभी जो ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। let this line L is parallel to line M and this line T consider as a transversal। now student this angle उतना ही एंगल बनेगा। अच्छा, इसके पहले टोटल कितना एंगल बना था? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस देन टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म। नाउ इन दिस केस टू लाइंस बट दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस बट सेम एंगल्स आर फॉर्म देयर, मींस 8 एंगल्स, टोटल 8 एंगल्स आर आल्सो फॉर्म हियर। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट दिस एंगल A and let this angle B and this angle is C and let this angle is D and this is angle E and this is angle EF and this is angle G and this angle is EH। okay student, this is the name of angle A B C D E F G H। ये हमने क्या किया है? एंगल का नाम रख दिया है। दिस एंगल इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई एफ जी एच। ओके स्टूडेंट, तो देयर आर टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस और एनी टू पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टी अब क्या होती है? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then first property is then their corresponding angles are congruent, their corresponding angles are congruent, angles are congruent। okay student, if a transversal intersect two parallel lines then their corresponding angles are congruent। बात समझ में आई क्या? जब एक ट्रांसवर्सल किसी भी दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है? इक्वल। ओके स्टूडेंट, अभी आपको पहचानने आ गया। इसके पहले हमने सीखा कि कौन सा पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कौन सा पेयर अल्टरनेट एंगल्स होता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? corresponding angles are congruent। which pair are corresponding angles? student, angle A and its corresponding angle E। okay, then first corresponding angles are congruent। it means angle A is congruent to angle E। क्लियर ना? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। क्यों? एंगल ए और एंगल ई क्या है? करिस्पॉन्डिंग एंगल है। और प्रॉपर्टी क्या है? जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, सेकेंड पेयर बताओ। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। थर्ड पेयर बताओ। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, angle B is congruent to angle F। and now fourth pair of corresponding angles, angle C and angle G, angle C is congruent to angle G। okay, this property is clear ना? कौन सी प्रॉपर्टी? if a transversal intersect two parallel lines then their corresponding angles are congruent। okay student, and second, when a transversal intersect two parallel lines then alternate angles are congruent, then
alternate angles are congruent. ओके स्टूडेंट, करिस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. बताओ अल्टरनेट एंगल का इधर पेयर बताओ. एंगल सी एंड एंगल ई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय दिस प्रॉपर्टी. एंगल C is congruent to angle E. Angle C is congruent to angle E. And next alternate interior angles, angle D and angle F. Angle D is congruent to angle F. Okay student, these two pairs are alternate interior angles and they are congruent, and also alternate exterior angles are also congruent. Angle A is congruent to angle G. Angle A is congruent to angle G, and one more pair are there. Angle B is congruent to angle H. Angle B is congruent to angle H. Okay student, this one is clear ना. These two properties are clear ना. कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड आल्सो देयर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then the angles on the same side, on the same side of the transversal, same side of the transversal are supplementary. Okay student, when a transversal intersect two parallel lines, then the angles on the same side of the transversal. Okay student, this is the transversal. सेम साइड में देखो एंगल ए है, एंगल डी है, एंगल ई है, एंगल ई है, लेकिन सारे एंगल सप्लीमेंट्री नहीं. डू यू नो सप्लीमेंट्री एंगल्स? आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आता है क्या? इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. किसी एक एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलते. जब दो एंगल को प्लस करने पर कितना आता है? 180 आता है. तो दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं. बात समझ में आ रही क्या? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल्स हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों का सम कितना होता है? 180. ओके स्टूडेंट, एंगल D एंड एंगल E आर सप्लीमेंट्री. तो एंगल D प्लस एंगल E सप्लीमेंट्री मीन्स क्या? दोनों का सम कितना? 180 डिग्री. एंगल D एंड एंगल E, ओके स्टूडेंट, दे आर supplementary because of they are interior angles on the same side of the transversal. अच्छा, ये सेंटेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स and exterior angles on the same side of the transversal are supplementary. Okay student, angle D and angle E supplementary, therefore angle D plus angle E is 180 degree, and also angle A plus angle H एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल A प्लस एंगल H. दिस इज आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स. इट मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री. एंड आल्सो एंगल C प्लस एंगल F कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. एंड exterior angles on the same side of transversal. This is transversal, and in this side angle B and angle G are exterior angles. Therefore they are supplementary. Angle B plus angle G is equals to 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या? जब कोई ट्रांसवर्सल, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एनी टू पैरेलल लाइंस then their corresponding angles are congruent and their alternate angles are congruent, and
interior angles and exterior angles on the same side of the transversal are supplementary. Okay student, now note down this. Okay student, after completing all the properties which is related to problem set 1.1, student, now we will start problem set 1.1. Okay student, now see on the screen, this is your question number 1. Okay student, and related diagram is here. Question is here and its diagram is this. Okay student, now question is given that in the figure line RP is parallel to line EMS. Okay student, line RP, this line is RP and this line is EMS. These two lines are given that parallel, and DK is their transversal. You see in this diagram, this line is DK, this point is point K. Okay student, this line DK is their transversal and one angle is given, angle DHP, angle DHP. Student, this angle is given that 85 degree. Then find the measures of following angles. Okay student, first angle जो फाइंड आउट करना है, एंगल RHD. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट एंगल वी विल फाइंड एंगल RHD. डायग्राम समझ में आए क्या स्टूडेंट? देयर आर टू लाइंस, line PR, this line PR and this line EMS. These two lines are parallel and this line DK is their transversal. बात समझ में आई क्या? अब प्रॉपर्टी, हमको सारी प्रॉपर्टी मालूम है. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect two parallel lines, then their corresponding angles are congruent, their alternate angles are congruent, and angles, interior angles and exterior angles on the same side of the transversal are supplementary. Okay student, now first we will find angle RHD. One angle is given. कौन सा एंगल दिया है? This angle DHP. Student, this angle is given DHP 85 डिग्री. क्या फाइंड आउट करना है? एंगल RHD. Student, you see in this diagram, this angle RHD and these angles are in linear pair. Angles are in linear pair. Linear pair समझते हैं क्या? जो एक ही लाइन पर बनता है. ये कोई एक लाइन हो गई, यहां से एक लाइन हो गई, तो स्टूडेंट ए एंगल और ए एंगल दोनों एक लाइन ऐसे दोनों का कॉमन. ओके, ऑन अपोजिट रेज एंड वन साइड ऑफ एंगल्स आर कॉमन, देन दीज टू एंगल्स आर नोन एज एंगल्स आर इन लीनियर पेयर. एंड स्टूडेंट, इफ एंगल्स आर इन लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री. अगर एंगल लीनियर पेयर में है तो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. एंड यू नो इफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम इज 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल फाइंड एंगल. कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एंगल RHD. देख रहे हैं ना डायग्राम में, ए एंगल फाइंड आउट करना है एंड दिस एंगल इज गिवन. सो स्टूडेंट, दिस एंगल RHD and this angle DHP are in linear pair, therefore their sum is 180 डिग्री. बात समझ में आ रही क्या? ये दोनों एंगल किस में है? लीनियर पेयर में है. लीनियर पेयर में है तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एंगल RHD प्लस एंगल DHP. ये बात समझ में आई क्या? दिस एंगल RHD प्लस दिस एंगल DHP. देख रहे हैं ना, दोनों 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं. दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, या ऐसे रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स. लीनियर पेयर एंगल्स. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना? Now angle RHD, this angle RHD and this angle DHP. Angle DHP, student, angle DHP, this angle DHP is given that how much? 85 degree. So substitute this value 85. This is equals to 180. Now angle RHD is equals to 180 degree. Now this plus 85 taken this side, minus 85. So angle RHD after subtracting
85 from 180 we get 95 degree. Okay student, this one is clear ना. Angle RHD कितना मिल गया? 95 degree. First one is clear. Now second we will find angle PHG. Second क्या find out करना है? Angle PHG. अब इसको डायग्राम में देखो. Where is angle PHG? Student, this angle is PHG. This angle is PHG. बात समझ में आ रही क्या? डायग्राम में दिख रहा है PHG. PHG दिस, ये जो रेड कलर का हमने बनाया ये एंगल क्या है? PHG. ये फाइंड आउट करना है. तो देखो ये एंगल PHG एंड दिस एंगल, ये दोनों दिख रहा है क्या? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से. वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी मालूम है क्या? इफ टू lines intersect to each other then their vertically opposite angles are congruent. फर्स्ट लेसन में हमने थ्योरम बताया था, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं. ये देखो दिस एंगल PHG, यही एंगल ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये देखो दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? RHD इज इक्वल टू एंगल PHG. RHD कितना निकाला? 95. देयरफॉर दिस एंगल विल बी आल्सो 95 डिग्री. अच्छा, एक और मेथड से इसको निकाल सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल. डायग्राम में एकदम ध्यान से देखो, ए एंगल और ए एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों का सम 180 करके भी हम लोग निकाल सकते हैं. लेकिन ज्यादा इजी क्या है? डायरेक्ट हम लोग इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वेट कर देंगे. बात समझ में आई क्या? दिस एंगल PHG इज इक्वल टू दिस एंगल RHD. नाउ एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल RHD. एंगल RHD. क्यों आपने दोनों को इक्वेट किया? What is the reason? Now student, right here its reason. Vertically opposite angle. Vertically, V for vertically opposite angles. Okay. Now therefore angle PHG is equal to RHD and RHD is equal to 95. तो यहाँ क्या लिख दिया? 95. ओके स्टूडेंट. अच्छा, 95 वैल्यू कहाँ से रखा? फ्रॉम 1. तो यहाँ पर इसका रीजन रख दो फ्रॉम 1, मतलब 1 से हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया. देयरफॉर एंगल PHG इज 95 डिग्री. ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? दिस टू आर क्लियर ना? नाउ थर्ड वन इज एंगल HGS. चलो इसको पहले आप नोट कर डालिए. ओके स्टूडेंट, थर्ड एंगल वी विल फाइंड एंगल HGS. एंगल HGS. तो पहले डायग्राम में उसको फाइंड आउट करने का, वेयर इज द एंगल HGS? एंगल HGS. Okay student, this angle, name of this angle is angle HGS. And student, you see in this diagram, this angle and this angle are corresponding angles. बात समझ में आई क्या? corresponding angle पहचान में आ रहा है क्या? This angle HGS, its corresponding angle is DHP and both are congruent because of this transversal intersect two parallel lines. Property याद है क्या? If a transversal intersect two parallel lines, then their corresponding angles are equal. So this angle is equal to this angle because of they are corresponding angles. Okay student, now angle HGS, this is equals to this angle is equals to this angle, DHP. एंगल DHP. इसका रीजन क्या लिखेंगे? क्यों आपने इक्वल लिखा? यहाँ पर रीजन लिखना है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके स्टूडेंट, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल DHP. DHP की वैल्यू कितना दिया है? 85 डिग्री. ओके, एंगल HGS वी गेट 85 डिग्री. यहाँ रीजन लिख दो इसका
since angle DHP is given that 85, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है ना, एंगल DHP कितना है 85 डिग्री। ओके, नाउ फोर्थ वन इज एंगल MGK। फोर्थ एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल MGK। फर्स्ट फाइंड इन डायग्राम, स्टूडेंट फर्स्ट find this angle in diagram. Where is this angle? MGK. Angle MGK. Okay student, this angle MGK, this angle is MGK, and student you see this angle and this angle are vertically opposite angles. Okay student, vertically opposite angle. यहाँ देखो दो लाइन ऐसे कट कर रही है। If two lines intersect to each other, then their vertically opposite angles are congruent. Congruent मतलब क्या, equal. So this angle is equal to this angle. इसका नाम क्या है, MGK। एंगल MGK। अच्छा, ये एंगल MGK किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल HGS के, एंगल HGS। अच्छा, क्यों आपने इक्वल किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट एंगल HGS हम लोग इसको फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आया है 85 डिग्री। देयरफॉर एंगल MGK इज इक्वल टू 85 डिग्री। इसका रीजन लिख दो, फ्रॉम थर्ड से हमने इसकी वैल्यू पुट किया, फ्रॉम थर्ड we put here HGS is equal to 85 degree। समझ में आ गया? Okay student, so first question is completed. Now note down this solution. Okay student, now see your second question is on your screen and diagram is this. In this figure line P is parallel to line Q. Student, this line P is parallel to line Q and line L and line M are transversal. Student, these two lines are transversal. These two lines means line L and M are not parallel. Which lines are parallel? Line P and Q are parallel. These two lines are parallel and line L and M are given only transversal. These two lines are not parallel. Okay student, remember it. Measures of some angles are shown. Hence the find मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। सम एंगल्स आर गिवन। ओके स्टूडेंट, एज यू सी इन दिस डायग्राम, दिस एंगल इज गिवन दैट 110 डिग्री and this angle is given that 115 degree. Now we will find angle A, measure of angle A, angle B and angle C and angle D. तो बात समझ में आई क्या, इस डायग्राम में ये लाइन P और Q, these two lines are parallel lines. Clear ना, these two lines means line P and line Q, these two lines are parallel lines and line L and M are transversal line. Some measures are given and find the remaining angles. It means we will find the measure of angle A, angle B, angle C and angle D. Okay student, now you see in this diagram, this angle A and this 110 degree, both the angles are in linear pair. बात समझ में आई क्या, लीनियर पेयर पहचान में आ रहा है क्या स्टूडेंट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके एक ही साइड में ये दोनों किस में होंगे, दीज एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स। एंड स्टूडेंट, इफ एंगल्स आर इन लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझते हो क्या, देयर सम इज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल फाइंड दिस एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल 10। नाउ राइट इट्स सॉल्यूशन, एंगल ए प्लस एंगल 110 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपने क्यों लिखा, ये दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आपने क्यों लिखा, इसका रीजन यहां पर लिखना है। क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ
angle A is equals to 180 degree. This 110 taken this side becomes minus 110. अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो उसमें डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में हम लोग डिग्री लगा देंगे. This 110 degree taken this side becomes minus 110. So angle A 180 minus 110 is 70 degree. Angle A, measure of angle A is 70 degree. Okay student, after finding angle A we will find angle B. ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऑर्डर में ही फाइंड आउट करो, पहले ए, पहले बी, पहले सी, फिर उसके बाद डी. ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी एंगल को आप आगे पीछे फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल बी. स्टूडेंट नाउ सी इन डायग्राम वेरी केयरफुली दिस एंगल ए एंड दिस एंगल बी. यू कैन फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? स्टूडेंट सी वेरी केयरफुली दिस लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस. line P and Q are parallel lines and this is transversal line. So this angle and this angle alternate angle है क्या दोनों? ये देखो दोनों alternate angle है ना. और कैसा है? exterior alternate angle. बात समझ में आ रही क्या? पहचान में आ रहा है क्या? एंगल A and B are exterior alternate angles and they are congruent. This is the property. बात समझ में आई क्या? तो इसमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? दिस लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम लोग इसका थोड़ा सा रीजन लिखेंगे. सिंस लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज एज अ ट्रांसवर्सल. लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज as a transversal. बात समझ में आई क्या? and therefore angle A and angle B are alternate exterior angles. Okay student, if a transversal property, ध्यान से सुनो, listen very carefully. If a transversal intersect two parallel lines, then alternate exterior angles are congruent. Therefore alternate exterior angles are angle A and angle B. Therefore angle A is congruent to angle B. congruent लिखो चाहे equal लिखो. अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि चाहे कॉन्ग्रुएंट लिखो चाहे इक्वल लिखो? स्टूडेंट, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वल. मतलब अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब दोनों इक्वल होते हैं. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. तो ए की वैल्यू इसमें दिया है, कितना दिया है ए की वैल्यू बताओ? ये देखो हमने निकाला है, कितना निकाला है? 70 डिग्री. सो एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन. स्टूडेंट, आफ्टर दिस वी विल फाइंड एंगल सी. इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? एंगल सी. एंगल सी. स्टूडेंट, दिस एंगल सी एंड दिस एंगल 115 डिग्री आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स. बात समझ में आई क्या? एंगल सी के साथ में अगर मैं 115 डिग्री ले लूं तो दिस इज करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड यू सी दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस लाइन कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल. Line P is parallel to line Q and line M consider as a transversal. Then angle C and 115 degree are corresponding angles and we know that if a transversal intersect two parallel lines then their corresponding angles are equal. So this angle C is equals to 115 degree. बात समझ में आई क्या? तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है. line P, since line P is parallel to line Q and which line consider as a transversal? This line M and M is as a transversal. M is as a transversal. Therefore this angle C
इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। अब इसका रीजन क्या लिखोगे? बोथ द एंगल्स आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट हियर इट्स रीजन करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। So this is the value of angle C. Angle C is equal to 115 degree. And last one is we will find angle D. Student, you see this angle D and this 115 degree. Once again these two angles are making a linear pair angles. बात समझ में आ रही क्या? ये देखो दोनों लीनियर पेयर एंगल है। ये देखो स्ट्रेट लाइन हो गई, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। स्टूडेंट, दिस एंगल D एंड 115 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इन लीनियर पेयर। एंड नाउ एंगल D plus angle 115 degree, this is equals to 180 degree. Why the sum of these two angles is 180 degree? Because of angles are in linear pair. So write its reason, linear pair angles, linear pair angles, linear pairs angles. Now angle D is equals to 180. This 115 taken this side minus 115. So angle D is equal to 180 minus 115. 180 में से 115 माइनस कर दो, दिस इज 0 माइनस 5, कितना आ जाएगा? 5, 7 माइनस 1, 6, 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट, द मेजर ऑफ एंगल D is 65 डिग्री। ओके, नाउ राइट द आंसर, राइट द आंसर। एंगल ए बताओ कितना मिला था? 70 डिग्री। फाइनल आंसर में सब एक साथ में लिखना है। एंगल ए कितना? 70 डिग्री। एंगल बी कितना? दिस इज आल्सो 70 डिग्री। एंड एंगल सी इज 115 डिग्री एंड एंगल डी इज 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। Third question is in this figure line L is parallel to line M and line N is parallel to line P. Find angle ABC from the given measure of an angle. Student, this is diagram of question number 3rd. Line L, student, this line is L, this line is M. Line L is parallel to line M. These two lines are parallel and also line N is parallel to line P. मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। We will find the measure of angle A, angle B and angle C from given information. Given information is, student, one angle, measure of one angle is given. This angle is 45 डिग्री। तो इसके हेल्प से हमको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, नाउ सी इन दिस डायग्राम दिस एंगल इज 45 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इट्स करिस्पॉन्डिंग एंगल इज दिस। बात समझ में आ रही क्या? इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर होगा, लेकिन यहां पर कोई लेटर लिखा नहीं है। समझो अगर हमको ये एंगल मिल गया, ये अच्छा, ये एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस लाइन पी कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, गिवन समझ में आए क्या आपको? दीज टू लाइन्स मीन्स लाइन यल एंड एम आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड आल्सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। स्टूडेंट, नाउ सी इन दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, line L is parallel to line M and this line P consider as a transversal. इधर का भूल जाओ, these two lines are parallel and this line consider as a transversal. Then this angle and this angle, pair of these two angles are corresponding angles and we know that the property, if a transversal intersect two parallel lines then their corresponding angles are equal. अच्छा, तो ये 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा, ये एंगल मिल गया 45, तो हम लोग ए निकाल सकते हैं ना? दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इन लीनियर पेयर एंड दे आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए मिल गया, एंगल ए मिल जाएगा तो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा।
एंगल ए और एंगल बी क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही क्या? मतलब पहले हमको इस एंगल को निकालना है, तो इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे? एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए मिल गया तो उसके इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल बी। एंड स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बी एंड सी आर करिस्पॉन्डिंग एंगल. These two lines are parallel and this is considered as a transversal. Therefore, this angle B and this angle C are corresponding angles and they are congruent. बात समझ में आई क्या? मतलब हमको यहाँ का एंगल चाहिए, तो चलिए हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया दिस एंगल इज x. बात समझ में आई क्या? दिस एंगल इज x. अब इसको लिखोगे कैसे? Let us consider angle x as shown in figure. Let us consider angle x as shown in figure. ओके स्टूडेंट, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? हमने एंगल x कंसीडर कर लिया है. कहाँ कंसीडर कर लिया है? एज शोन इन फिगर. हमने फिगर में दिखाया है कि हमने x को कहाँ पे कंसीडर किया. नाउ स्टूडेंट, दिस एंगल x एंड दिस 45 आर करिस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों क्या है? करिस्पॉन्डिंग एंगल है. तो यहाँ पर हमको लिख के बताना है, सिंस लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन m and line P as a transversal, therefore this angle x is equals to 45 degree. x 45 डिग्री क्यों हो गया? corresponding angle. So write its reason, corresponding angles. Okay student, after getting the value of angle x and angle A are in linear pair and they are supplementary angles. Okay student, and now angle A plus angle x is equal to कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. इसका रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स. Okay student, this one is clear. Now angle A plus angle x, x की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री. This is equals to 180. Now angle A is equals to 180. This 45 taken this side becomes minus 45. So angle A 180 डिग्री minus 45 कितना आ जाएगा? 135 डिग्री. Okay student, this is the value of angle A. After getting the value of angle A, we will find angle B. Angle A and B are vertically opposite angles. Angle B is equals to angle A. Angle B is equal to angle A. ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल. Here two lines are intersecting lines. If two lines intersect to each other, then their vertically opposite angles are equal. So this angle B is equal to angle A. इसका रीजन क्या लिखेंगे? vertically opposite angles. Therefore angle B is equal to angle A and angle A, the value of angle A is 135 degree. So angle B is also 135 degree. Understood now? Okay student, and now see here, angle B कितना आ गया? 135. Therefore angle C will be also 135 degree because of angle C and angle B are corresponding angles. Okay student, अच्छा इतना लिख लो, फिर एंगल C हम लोग निकालेंगे. Now note down this solution. Angle C and angle B are corresponding angles. Now write here angle C is equals to angle B. क्यों? क्या रीजन लिखेंगे? corresponding angles. Okay student, corresponding angles. Therefore angle C is equal to angle B and the value of angle B is 135 degree. Angle C is 135 degree. Okay student, understood now? Now note down this solution. Okay my dear students, now see question number 4.
Question number 4 is this. In the figure, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. Student, you see in this diagram, this is angle XYZ. Clear na? This angle is angle XYZ and this is angle PQR. Okay student, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. Prove that angle PQR, क्या प्रूव करना है? एंगल PQR is congruent to angle XYZ. Okay student, now see in this diagram what are given. Sides of angle PQR, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. Student, as you see in this diagram, there are two angles. One is this, name of this angle is XYZ and name of this angle is PQR. तो दो एंगल दिख रहा है. अब इसमें गिवन क्या दिया है? साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल. एंगल पहले इसको रफली समझते हैं, फिर हम लोग इसका सिस्टमेटिक सॉल्यूशन लिखेंगे. स्टूडेंट, देयर आर टू एंगल्स. वन इज एंगल PQR एंड अदर इज एंगल XYZ. क्लियर ना? दो एंगल दिया है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है? साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल. मतलब एंगल PQR का साइड एंगल XYZ के साइड के पैरेलल है. अच्छा, इसमें कौन कौन सा दो साइड है बताओ? इन एंगल PQR देयर आर टू साइड्स, साइड PQ एंड साइड QR. कौन कौन सा साइड है? साइड PQ एंड साइड QR. एंड इन एंगल XYZ and in angle XYZ there are two sides, XY and YZ. बात समझ में आ रही क्या? स्टूडेंट, in this diagram there are two angles, angle PQR and this angle is angle XYZ. और क्या दिया है? sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. मतलब जो PQR में दो साइड है, XYZ में दो साइड है, साइड्स आर पैरेलल. मतलब ये जो PQ है किसके पैरेलल है? XY के पैरेलल है. और ये जो QR है किसके पैरेलल है? YZ के पैरेलल है. बात समझ में आ गई क्या? देन वी विल प्रूव दैट. वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, आप प्रूव करो. क्या प्रूव करना है? एंगल PQR. स्टूडेंट, दिस एंगल इज PQR एंड दिस एंगल इज XYZ. हमको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा. ऐसा प्रूव करके बताना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. बात समझ में आई क्या? तो जब हम लोग प्रूव करते हैं, जैसे आप थ्योरम प्रूव करते हैं, थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू राइट गिवन. सेकेंड पॉइंट टू प्रूव. थर्ड पॉइंट क्या आता है? कंस्ट्रक्शन. एंड लास्ट पॉइंट इज प्रूफ. तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन. क्या लिखेंगे? गिवन. अब गिवन क्या है इसमें? साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल. स्टूडेंट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. This one is given, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. तो अब इसको गिवन में कैसे लिखेंगे? चलिए इसका देखते हैं सिस्टमेटिक सॉल्यूशन. क्या लिखना है? साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल. यही गिवन है ना? यही इंफॉर्मेशन दिया है. क्या इंफॉर्मेशन दिया है? साइड्स ऑफ PQR, एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल. मतलब एंगल PQR का जो साइड है वो एंगल XYZ के साइड के पैरेलल है. तो ये जो सेंटेंस में लिखा है इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज PQ इज पैरेलल टू XY एंड QR इज पैरेलल टू YZ. बात समझ में आ गई क्या? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं व्हाट वी विल प्रूव दैट इन दिस क्वेश्चन. टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? दिस एंगल PQR
ये तो डायरेक्ट दिया है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। अच्छा, आफ्टर द पॉइंट टू प्रूफ वी विल राइट कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने बताया था, हर एक थ्योरम में नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसा इसमें करेंगे? तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन जरा इधर रफली पहले समझते हैं। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये जो रे एक्स वाई है इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। एक्सटेंड रे एक्स वाई विच इंटरसेक्ट क्यू आर लेट एट पॉइंट ए। बात समझ में आए क्या? एक्सटेंड रे एक्स वाई विच इंटरसेक्ट क्यू आर एट पॉइंट ए। बात समझ में आई क्या? रे एक्स वाई को हमने आगे बढ़ा दिया, ये क्यू आर को कहां पे कट करे? पॉइंट ए पे कट करे। स्टूडेंट दिस इज द कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। या अगर हम इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, अगर इसको नहीं करेंगे तो इसको इधर कर देंगे, दोनों में से कोई एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, आफ्टर कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट यू सी हियर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल ना, these two lines are parallel and this line consider as a transversal, then you see this angle is equal to this angle by corresponding angle test। बात समझ में आई क्या? these two lines are parallel and this one consider as a transversal। तो बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बराबर ना? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और अब आगे देखो स्टूडेंट, these two lines are also parallel, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, और ए इसको हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लिया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड नाउ यू सी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड आल्सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बात समझ में आ गई? तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सटेंड रे एक्स वाई। एक्सटेंड रे एक्स वाई समझ रहे हैं क्या? रे एक्स वाई को आगे बढ़ा। हमने क्या बोला? रे एक्स वाई। रे एक्स वाई मतलब क्या? दिस रे स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड टूवर्ड्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स वाई। रे एक्स वाई का मतलब समझते हैं क्या? अगर कहीं लिखा है रे एक्स वाई तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? यक्स से निकलकर किधर जा रही है? वाई की ओर जा रही है। तो यक्स से निकल के वाई की ओर ऐसे आ गई। एंड एक्सटेंड रे एक्स वाई विच इंटरसेक्ट क्यू आर एट पॉइंट ए। विच इंटरसेक्ट्स क्यू आर एट पॉइंट ए। Okay student, now next point is proof। लास्ट हेडिंग क्या लिखते हैं? प्रूफ। तो चलिए प्रूफ हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट these two lines are parallel, गिवन में दिया है ना, this QR is parallel to YZ, so write here since QR is parallel to YZ and this one is considered as a transversal and XY is as a transversal। XY is as a transversal, इसको पूरा लिख लेने का, ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट, अच्छा इसको XY या XA भी लिख सकते हैं। XA, चलो XA मैंने कर दिया इधर, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। नाउ क्लियर ना? दिस QR is parallel to YZ, this is given and this ray AX or XA is a transversal। Student, if a transversal intersect two parallel lines then their corresponding angles are congruent। बात समझ में आई क्या? जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल XYZ इज इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा इसका नाम बताओ क्या? YAR, नेम ऑफ दिस एंगल YAR, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप XAR, दोनों में कोई भी चलेगा। तो YAR मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? YAR। Therefore
एंगल YAR, दिस इज इक्वल टू, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल XYZ, एंगल XYZ। ओके स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन 1। अब इसका रीजन भी लिखेंगे, आपने इक्वल क्यों किया, आपने इक्वल क्यों किया? बाय द प्रॉपर्टी, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट, चलो यहां पर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बना दिया, एंगल YR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। रीजन क्या लिखेंगे? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये आप गिवन लिख लेना, मैं यहां से रफ करके आगे कंटिन्यू यहां से लिखूंगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अगेन सी इन दिस डायग्राम, नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस PQ, this PQ is parallel to XY, now PQ is parallel to XY। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये बताओ PQ किसके पैरेलल है? XY के, therefore this PQ is parallel to XA, this PQ, therefore this PQ is parallel to XA। ये देखिए XY is parallel to PQ, therefore this PQ is parallel to AX because of points A, Y, X are collinear। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? A, Y, X are collinear। ओके स्टूडेंट, नाउ PQ is parallel to AX, this PQ is parallel to AX and this line Q are considered as a transversal and QR is a transversal, Okay student, these two lines are parallel and this is transversal, therefore this angle is equal to this angle na, by corresponding angle. So this angle, name of this angle is angle YAR, therefore angle YAR is congruent to this angle, this angle is equal to this angle, means angle YAR is equal to angle PQR, angle PQR। let this is equation 2, write its reason। क्यों आपने दोनों को इक्वल कर दिया? corresponding angles। ओके स्टूडेंट, write its reason, corresponding angles। okay, now student see equation 1 and equation 2। equation 1 student, this is equation 1 and this is equation 2। see very carefully equation 1 and 2। student, in equation 1 angle YAR is equal to this angle, YAR is equal to angle XYZ and in equation 2 angle YAR is equal to angle PQR। यही देखो एंगल YAR किसके इक्वल है? XYZ के। एंगल YAR किसके इक्वल है? PQR के। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दिस एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। बात समझ में आई क्या? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, इफ X इज इक्वल टू A and X is equal to B, तो from these two relation we can say A is equal to B। बात समझ में आई क्या? X किसके इक्वल है? A के, X किसके इक्वल है? B के। तो ये दोनों रिलेशन से क्या कंक्लूजन निकलेगा? एंगल A is equal to एंगल B। अंडरस्टूड ना? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 या ऐसे आप समझ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड विल बी सेम, एंगल PQR। तो 1 और 2 से क्या रिलेशन निकला? एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल XYZ, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। बात समझ में आ गई क्या? ये देखो टू प्रूफ में आपने यही लिखा था, मतलब यही हमको प्रूफ करना था, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। तो यहाँ पर ऐसे इसको बॉक्स में करके यहाँ क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, मतलब इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई क्या? ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नाउ सी question number 5। question number 5 is
In the figure, line AB is parallel to line CD and line PQ is transversal. Measure of one of the angle is given. Hence find the measures of the following angles. Okay student, this question is like as question number 1. यह क्वेश्चन कैसा है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू. ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव टू completed first problem set 1.1. okay student, now we will meet in next lecture. Thank you.